السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ مہاروز. ویلکم ٹو مائی شو سپر ستارے وتھ مہاروز. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کراچی کو صرف ایک شہر نہیں بلکہ اپنا گھر، اپنی سانس، اپنی جان اور اپنی پہچان سمجھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کیس منصور شیخ صاحب کی. کراچی کے وہ سچے بیٹے جو نہ صرف شہر کراچی کے مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے خود میدان میں کھڑے نظر آتے ہیں. کبھی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی سردیوں کی سخت راتوں میں کمبل بانٹتے ہیں، کبھی بھوک سے لڑتی بستیوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو کبھی ٹوٹے ہوئے سڑکیں اور پارکوں کے مرمت کے لیے حکام کو جھنجھوڑتے ہیں. کیس منصور شیخ صاحب صرف ایک سوشل ورکر نہیں بلکہ کراچی کی آواز، کراچی کی امید اور کراچی کے لیے مسلسل لڑنے والا ایک دل ہے. تو آج جانیں گے ہم ان کی یہ سٹوری کیسے شروع ہوئی، کیا مشکلات آئیں اور ان کے کیا خواب ہیں کراچی کے حوالے سے. تو چلے آئیں، خوش آمدید کرتے ہیں کیس منصور شیخ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ کراچی سے آپ کی محبت کی جو داستان ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوئی؟ کراچی سے تو سب کو محبت ہے، جو یہاں رہ رہے ہیں. سب میں ہی نہیں، پورا کراچی سے محبت کرتے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں، ایک عام فیملی ہو یا رچ ہو، انہوں نے بچوں کو ایجوکیشن دی ہے. کوئی ہر گھر میں کوئی ڈاکٹرز انجینئرز ہیں، تو ایوری باڈی لوز کراچی. تو اسی بارش میں پھر آپ نے دیکھا بہت گھر، عباس ٹاؤن کی سڑک ٹوٹ گئی، ایک سمو گوٹ تھا اس کے سامنے کے سارے گھر ٹوٹ گئے. پھر سرجانی میں، اورنگی میں. تو میں نے الحمدللہ ان سارے ایریاز کی جو گھروں کی ریپیئر کروا کے دی ان 15 days. اچھا، گھروں میں اتنا ایکسپینس نہیں آ رہا ہوتا. چھوٹے علاقوں کے جیسے جو نالے کے ساتھ ہے، 30 گز کے 40 گز کے، وہ جب نالے کا پانی نکلتا ہے ان کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور پانی اندر آ جاتا ہے گندا گٹر کا، وہیں پہ رہتا ہے. پھر اسی میں ان کے واش رومز ہوتے ہیں، ان کی دیواریں گر جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ بلاکس بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں تھے، ہر چیز کنٹرول تھی. تو میں نے 15 days میں ان ساروں کے گھر، چیزیں جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی وہ میں نے بڑا ایک پلان کر کے کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ چھتیں ہوتی، بعض لوگ جان بوجھ کے بھی دکھا دیتے تھے اپنا گھر، 2-4 بلاکس پھینکے کہ جی میرا ٹوٹ گیا، آپ مجھے فنڈ دیں، میری ہیلپ کریں. تو میں نے گھر جا کے ان کے گھر بنائے، کانٹریکٹر کو لے جاتا تھا. پھر جب میں نے یہ دیکھا سارا، پھر کرونا آہستہ آہستہ ختم ہوا، لیکن اس ایریے کے لوگ دے ور جسٹ بیہائنڈ می کہ جی آپ ہمارا وہ کر دیں. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورے شہر میں کسی نے کرنگی سے کال کی، میں بھاگوان گیا، کسی نے مجھے ملیر سے کی، کسی نے لانڈی سے کی. پھر ایک پوزیشن آئی کہ میرے لیے بڑا رسکی بھی ہوتا ہے ایریاز میں اکیلے جانا. تو مجھے پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ اکیلے ایسے مت جاؤ، ایک ایریا لے لو، اسی میں لوگوں کا کر دو. تو وہاں پہ تو میں نے پھر یوسف گوٹ کے لوگوں کا وہاں شروع کیا. پھر وہاں پہ 100 کے قریب میں نے گلیوں کا سیوریجز کی. سب سے بڑا ایشو جو کراچی کا ہے وہ ہے سیوریج. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. صاف پانی، بجلی، گیس، یہ ساری بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہر ایک انسان کا حق ہے کہ اسے ملے. اور ریسنٹلی جب بارشیں ہوئی تھی ہم نے دیکھا کہ آپ خود جو ہے وہ گڈھے بھر رہے تھے اور آپ اردو بازار بھی گئے اور وہاں پہ بھی آپ نے آواز اٹھائی. اور اکثر ہم وہاں دیکھتے کہ وہاں پہ گٹر کا پانی ہوتا ہے اور کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس دفعہ آواز اٹھائی اور پھر ہم نے اسے صحیح ہوتے ہوئے بھی دیکھا. دیکھو، گورنمنٹ کو اب لوگوں کے امتحان نہیں لینے چاہیے. اس کچرے سے، اس ڈسٹی ایٹماسفیئر سے، اس ٹوٹی سڑکوں سے آدھے کراچی کے لوگ بیمار ہو چکے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ٹوٹی سڑک صرف کہنا ہے، چھوٹا سا بھی گڑھا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ایک بائک والا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، آپ نے پول پہ لائٹیں نہیں آپ کی آن ہوتی، بندہ کیا کرے قوم. آپ سڑکیں ٹوٹی نہیں دے، ٹوٹی ریپیئر نہیں کرے ٹائم پہ، آپ سیوریج نہیں کرے، پانی، بجلی، گیس کچھ نہیں دے رہے، پھر آپ لائٹ بھی نہیں دے رہے. اب رات کو جائیں، بلوچ کالونی جائیں، ڈفرینٹ ایریاز میں جائیں، پول پہ لائٹس نہیں ہیں، تو آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ پبلک کے لیے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا میئر اسٹرکٹ ہو جائے، that is hardly a game of 90 to 100 days that he can construct and he can just
इम्प्रूव कराची. अब आज ये देख लें, आपके सामने यूसी चेयरमैन्स कितने होंगे, मेरा ख्याल आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, लेकिन एटलीस्ट 300 350 के करीब, 250 से 350 के दरमियान चेयरमैन्स हैं. यानी कि कराची में 200-250 अगर चेयरमैन हैं, तो आप बताएं कि वो अगर वही लोग अपनी टीम, जो एक चेयरमैन के अंडर वाइस चेयरमैन है, उसके अंदर 4 काउंसलर्स हैं, ये 7 लोगों की टीम जिनके पास फंड है, मशीनरीज हैं, यही 3-3 महीने अपनी जगह पे लगा दें. आप कराची का ना सोचें, आप अपने एरिया का सोचें, तो कैसे नहीं कराची बनेगा. आज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची को बनाएं बड़ा, और कराची ने लोगों को बनाया. आप देखें पेशावर में भूखा है ना, तो उसके माँ बाप उसको निकाल देते हैं ना, तो कहते हैं कराची चलते हैं. पंजाब में कोई भूखा उसको निकाल देते, कराची चलते हैं. बलूचिस्तान में कोई भूखा है, परेशान है, रोज़क नहीं मिला, कराची चलते हैं. गिलगित, चित्राल, कहीं पे भी, बल्दिस्तान चले जाएं, कश्मीर, कराची चलते हैं. और कराची से बने तो कराची की कदर करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए. जी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कराची में, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी 3 प्रॉब्लम्स है हमें जिसे बहुत ही फौरी तौर पर जो है सॉल्व करना चाहिए, तो उससे बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन आप सोलर में सारे कराची की स्ट्रीट लाइट्स लगा दें, कम से कम फैमिलीज को डर नहीं लगेगा रात को जाते हुए. परेशान डकैत को भी जो होगा उसको भी परेशानी होगी कि जी मैं करके जाऊंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, रोशनी होगी. ऐसी अंधेरी की कंडीशन में जो डकैत हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं. दूसरा, आप सड़कें बना दें. ये बड़ा डेंजरस काम है. देखिए गाड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल स्टिल खड़ी है, और एकदम सिग्नल खुला, वो गाड़ी निकल गई और पीछे से बाइक वाला आ रहा है, वो तो उसको पता ही नहीं चलेगा उस गाड़ी के नीचे गड़ा था. गाड़ी तो क्रॉस कर जाएगी, वो जब आगे निकलेगा उस गड्ढे में गिरेगा और गाड़ी से टकरा जाएगा. वो गाड़ी वाला उस गरीब को पकड़ेगा, उसको पकड़ कर उसको मारेगा, मार कर उसको क्या कि मेरी गाड़ी का क्लेम तो है. अब वो गरीब क्या करेगा. मैंने ये इंसिडेंट देखा डॉलमन क्लिफ्टन में. मैंने उसी के नेक्स्ट वीक में पूरे डॉलमन क्लिफ्टन से मैकडोनल्ड से क्लॉक टावर से मैकडोनल्ड, इन सारों के होल्स मैंने बंद किए जो गड़े, और इसी तरह सऊदी एम्बेसी से मैकडोनल्ड्स तक बंद किए. जस्ट इन 2 days, मीन्स एक संडे देन नेक्स्ट संडे. यही देख के कि किसी तरह ये बाइक्स वाले बच जाएं. फिर एक मीडिया वाले ही, आपको पता होगा, मेट्रोपोल के साथ ही जो राउंड अबाउट है उधर भी उसी वजह से हुआ. फिर मैंने मेट्रोपोल का बंद किए गड़े, फिर मैंने FTC से एयरपोर्ट तक बंद किए, फिर मैंने गवर्नर हाउस के सामने बंद किए जहाँ उनके राउंड अबाउट्स पे गड़े थे. अभी मैंने लास्ट वीक एक 8 नवंबर को एक वीडियो की क्लिफ्टन में, जब इन्होंने बिन कासिम पार्क की दीवारें तोड़ी, तो मैंने इनको कहा कि अब आपने तोड़ी हैं तो उसे सामान पड़ा हुआ था कि दोबारा बन रही हैं. तो आई मेड द वीडियो कि आप इसको बनाएं मत, आप दुनिया में जाएं पार्क में, दे डोंट नीड इतनी ग्रिल्स, इतने पिलर. मैंने कहा फिर 1 करोड़ का 20 करोड़ ले लेंगे और थोड़े अरसे बाद फिर वो सी की वजह से ख़राब हो जाएगी. तो आप इसको बनाएं ना. और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी बगैर दीवारों के कि आपको हरियाली इधर भी नज़र आ रही है, इधर भी नज़र आ रही है, बीच नज़र आ रहा है. फिर उस जगह को पिलर वगैरह बना के छुपा के मिसयूज़ किया जाता है. ड्रग्स लोग पीते थे वहाँ पे, फैमिलीज जा नहीं सकती थी. अब फैमिलीज के लिए इतना बड़ा एटमॉस्फेयर, उसको डेवलप कर दें, उधर लाइटें चला दें. तो फिर परसों तरसों मीडिया पे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर उसको देखा, कराची के मेयर ने भी यही बात कही, तो आपको कैसा लगा? हाँ जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. नहीं, ये जो मैं रोड के भी पैचेस बनाता हूँ, ये मैं पूरा कराची तो नहीं कर सकता, लेकिन दैट मैसेज इज ऑलवेज फॉर मेयर कि इफ अ सिंगल पर्सन कैन डू, यू कैन डू इट. और मैं जब इनको ये मैसेजेस करता हूँ, उर्दू बाजार, जितने बाजारों में जाता हूँ, मैं कितना कर सकता, कितने गटर के ढक्कन लगा दूंगा, कितना रिपेयर, लेकिन वो मैसेज जाता है गवर्नमेंट को और फिर उस इलाके की बिजनेस कम्युनिटी को भी. अभी मैंने एक काम स्टार्ट किया था कि मैंने 25 kg का एक थैला लिया, इसमें डामर होता है, उसको हम लोग रात को अक्सर, ये लड़के जो मेरे हैं, हम लोग गाड़ी में रखते हैं, जो गड़ा होता है उस पर लिक्विड डालते हैं, साफ़ करते हैं, लिक्विड डालते हैं ऊपर वो, और फिर भाड़े से उसको दबा देते हैं. ये हम अक्सर गाड़ियों में लेके जाते हुए कभी हफ्ते में 2-3 दफ़ा हम ये करते रहते हैं कि लोग पिक कर लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है. अल्लाह बेहतर करेगा, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे. और इसके लिए, इस मैसेज को सॉलिड करने के लिए आपको अपने हाथों से काम भी करना पड़ता है. अगर आप बातें ही करें और हाथों से कुछ करके ना दिखाएं तो लोग कहेंगे ये तो बातें करता रहता है.
हमें सड़क भी बनानी पड़ती है, हमें राशन भी बांटना पड़ता है, हमें जैकेट्स भी देनी पड़ती हैं, हमें हेलमेट्स भी देने पड़ते हैं, हमें स्कूल बैग्स भी देने पड़ते हैं, हमें ब्लैंकेट्स भी देने पड़ते हैं, हमें जो है ट्यूबवेल्स भी लगाने पड़ते हैं इंटीरियर में, हमें हैंड पंप्स भी लगाने पड़ते हैं. तो वी जस्ट, फिर मैंने एक काम और बड़ा अच्छा किया, कब्रिस्तानों की रिपेयर. वो मैंने यूसुफ गोट में पूरे उसकी दीवार गेट मेंटेन किया. जब पानी आया था तो कब्रों में भी गड्ढे बन गए थे. जी, जैसे कि आवाम जो है वो समझती है कि सारा काम जो है वो हुकूमत का ही है, कि आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप भी हैं, आप भी निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं. तो ये एक मैसेज जो है पूरी आवाम के लिए कि हम जितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें अपना इतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हमें देख के पे और लोग भी आगे आते हैं, और पे हुकूमत को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हाँ ये मेरा काम है और ये काम मुझे खुद जो है वो करना चाहिए. अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे कि कराची में आपने जैसे सड़कों के बारे में बताया कि इतने ज़्यादा मसाइल है, तो हम देखते हैं कि आए दिन जो है बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो बाइक वालों को कुचल के चले जाते हैं, और आज भी एक हादसा पेश आया. तो आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमें, क्योंकि मासूम जो फैमिली है उनके वालिद, उनके भाई इस दुनिया से वो चले जाते हैं. इसके जिम्मेदार सारे ही हैं, पब्लिक भी है, पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, हर कोई है. जो केसेस जाते हैं वो भी है. अभी देखिए कि हमारा लड़का है जो मेमन, गार्डन में जब हुआ उसका, तो पहली दफ़ा SHO को मेरा सैल्यूट है कि उसने प्रेशर में नहीं आया, उसने लियाकत महसूद की FIR काटी, और फिर वो जो बच्चा है हमारा मेमन, उसने जाके उनके ऊपर केस फाइल किया, और आज उसने फिर बेल करवाई. आज उसकी बेल रिजेक्ट होगी, वो भाग गया. देखिए, पब्लिक ने एक स्टेप तो ले लिया, जी तो ये मसला ना होता. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी दुआ है कि इस तरीके से और भी लोग आगे आएँ और ईमानदारी के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है एक दिन ज़रूर कामयाब होगा. अच्छा, कराची के मसाइल को उजागर करते हुए सबसे बड़े किस मसले को आपने फेस किया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे अगेंस्ट नहीं लोग गए, हम्म, हमने कोई गलत वे में कोई काम नहीं किया. हम्म. जब आप अच्छे काम के लिए जाएं तो आपके लोग इतने अगेंस्ट नहीं होते हैं. जी, हमने देखा कि आप इखलाक के दायरे में रहकर काम तो फिर करते हैं. हम उस हिसाब से ये नहीं करते कि हम CM को थ्रेट मारें, किसी को थ्रेट करें. दैट डजंट सूट्स. तो हमने एक तमीज़ में, मैनर्स में रह के उनको एक गाइडलाइन देने जो इस्लाम कहता है. सही. तो आप जब से काम कर रहे हैं कराची में, उससे पहले और अब आपको क्या तब्दीलियां जो है वो महसूस होती हैं? कराची नहायत गंदा हो चुका है. पहले बहुत साफ था, एक टाइम था, इतने इश्यूज नहीं थे कि इतनी लोड शेडिंग गरीबों के इलाके में, इतनी स्नैचिंग, पोल की लाइट्स नहीं है, रोडें टूटी हुई, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी, ये मसाइल कभी फील ही नहीं हुए थे. जी, मैंने ठीक है ना? ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स कह रहे कि हमारे एग्जाम्स है बोर्ड की, और पूरे दिन घर में लाइट नहीं होती थी तो हम मोमबत्ती और टॉर्च के जरिए पढ़ते थे. तो मोबाइल इस तरह बंद, के हालात हैं. मोबाइल ऑफ, हर चीज़ ऑफ. आप सही. तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है कराची को लेके? देखें, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज बढ़ा दें, सही. लाइट, बिजली होनी चाहिए. ये तो एक आम चीज़ है. वी आर इन 2025. ये कोई 100 साल पहले तो नहीं है ना. तरक्की कर रही है दुनिया. बिजली की 4 कंपनियों को हायर करें, चाइना को भी एक दे दें. अब तो आपके रशिया, चाइना, अमेरिका, हर कोई प्यार करता पाकिस्तान से. दे आर वेरी इम्प्रेस्ड. सऊदी को कहते हैं आपको बना दें. कि इलेक्ट्रिसिटी आई गेस कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम जो है वो जुड़े हैं, लोगों की जॉब से काम है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम होना चाहिए. बिल्कुल, और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि जब से फील्ड मार्शल आए हैं तो उससे ना चीज़ें बेहतर हो रही हैं. तो उनके प्रेशर बन रहा है. जी, तो आप आज के नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची के हवाले से, कराची से मोहब्बत के हवाले से? मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि ना, पॉलिटिक्स में एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर मत आए. यानी तालीम जो है वो पहली तरजीह है. जी, उसी से सारा सोल्यूशन हो, उसी से जॉब मिलेगी, उसी से आप एजुकेट होगे, उसी से आप मुल्क बनाओगे, उसी से आपका गंदे कामों से जान छूटेगी, आपका माइंड उतर नहीं जाएगा. मेरे ख्याल से कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और आपकी तरह और लोगों को भी आना चाहिए, तो मेरी दुआ है कि आप जो है इसी तरीके से काम करें और भी लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना सिर्फ कराची बल्कि बाकी शहर भी जो है वो तरक्की करें.
تو بہت شکریہ سر، آج آپ نے اپنا بہت زیادہ پریشیس ٹائم دیا اور آپ نے اپنی کراچی سے محبت کا اظہار سب کے سامنے کیا. ویسے تو ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.